اب میں آج کے پہلے مہمان خصوصی سروریا مقبول جان کو دعوت دینا چاہتا ہوں. وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں. ویسے میں ان کے لیے بہت تعارف ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا، تو میں نے پھر سوچا کہ حرف راز سے بڑا ان کا تعارف کوئی نہیں ہو سکتا. وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبریل دے تو کہوں. ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، بہت فراہی افلاک میں ہے ہار و زبوں. میں ملتمس ہوں سروریا مقبول جان صاحب سے کہ وہ آئیں اور جامعات میں اسلامی فکر کے احیاء پر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. سروریا مقبول جان صاحب. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. بہت خواتین حضرات، آپ میں سے اگر کسی کو بیروت شہر جانے کا اتفاق ہو تو 1867 میں 1867 میں وہاں امریکن یونیورسٹی قائم کی گئی تھی، اور اس کے بالکل بغل میں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے جس کا نام کارنیگی انسٹیٹیوٹ ہے. کارنیگی ان چند لوگوں میں سے تھا جو سرمایہ دار بھی تھا، اور اس کا ایک دوست راک فیلر بھی ہوتا تھا، جنہوں نے 1890 کے آس پاس یہ تصور کیا کہ اس دنیا کے اندر ہم نوجوانوں کو اپنی زیر تسلط کیسے کریں گے. اور 20ویں صدی کے بالکل آغاز میں انہوں نے موجودہ نظام تعلیم جو ہے اس کو جسے کہتے ہیں شیپ اپ کیا. میں ہاتھ میں، آپ نے دیکھا ہوگا میں بہت کم کتابیں اپنے ہاتھ میں لے کے نکلتا ہوں، لیکن آج میں 2 کتابیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس سے آغاز کروں گا کہ ہم اس وقت کس طرح کی صورتحال کا شکار ہیں اور ہم کون سی چمکھی لڑائی لڑ رہے ہیں. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم اسی تالاب کے اندر بیٹھے ہوئے یوں ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں سے باہر نکل جائیں گے. یہ شخص ہے جان ٹیلر گیٹو. اس نے تقریباً 100 سال کے بعد اس پورے کے پورے نظام تعلیم کے اوپر پہلی کتاب لکھی تھی، ڈمپنگ اس ڈاؤن. ہمیں ڈمپ بنایا جا رہا ہے، سوچنے سمجھنے سے آری بنایا جا رہا ہے. ڈمپ کہتے ہیں بیوقوف قسم کا آدمی. اور یہ کتاب اتنی خوفناک طریقے سے ایسے حقائق سامنے لے کے آئی کہ اس نے پھر دوبارہ اس کو تفصیل سے بتانے کے لیے ویپنز آف ماس انسٹرکشن، عموماً آپ نے لکھا سنا ہوگا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، کہ یعنی وہ جو ہتھیار صدام کے بارے میں کہا جاتا تھا. اس شخص نے کہا کہ کارنیگی اور راک فیلر نے مل کے ایک اسکولنگ کا سسٹم ڈیزائن کیا، پرائمری اسکولنگ کا. اس سے پہلے پرائمری اسکول جو تھے ان کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں تھی، تو یونیورسٹی ایجوکیشن یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، لیکن پرائمری اسکول سے انگلی پکڑ کے ہم کیسے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. ان کا بیسک مقصد یہ تھا کہ فلسفہ، سوشیولوجی، انتھروپولوجی، یہ ساری چیزیں بہت ہو گئیں. اب ہمیں ایسے لوگ چاہیے کہ جو مکمل طور پر ہماری پوری کے پورے اس کمپلیکس، جو کہ جسے ہم انڈسٹریل کمپلیکس کہتے ہیں، جسے ہم کارپوریٹ کلچر کہتے ہیں، ان کے لیے شاندار قسم کی مشینری فراہم کریں. اور انہوں نے اس کے حساب سے ڈیزائن کیا، جس کی وجہ سے جس کی کوکھ میں سے پھر MBA نکلا، اور پھر اس کے بعد آج کل تو پروجیکٹ مینجمنٹ پتہ نہیں کیا کیا چیز نکلی. اور وہ ڈیزائن کرنے کے بعد اس وقت پورے کے پورا امریکن معاشرہ ایسا ہو چکا ہوا ہے، یورپ کا معاشرہ ایسا ہو چکا ہوا ہے کہ جس معاشرے کے اندر انہوں نے یہ تصور کر لیا ہوا ہے کہ اب اس طرح کے لوگ جو ہیں وہی دنیا پوری کے اندر بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہی لوگ ہیں کہ جو اس دنیا کو چلا رہے ہیں.
यही वजह है कि बेहतरीन इंजीनियरिंग की डिग्री आपको उतने पैसे नहीं देती जितनी आप उसके साथ एमबीए का डिग्री साथ लगाएं, तो दे आर द बेस्ट पेड इन द वर्ल्ड। शानदार किस्म की डॉक्टर जो है इल्म हासिल करने के बावजूद भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट की अगर उसके साथ डिग्री उसके पास नहीं है तो उसके वो कुछ भी नहीं है, वो हाईली पेड नहीं हो सकता, प्रोफेशनल हो जाएगा, वो अपना ऑप्थेमोलॉजिस्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। यही पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने सूरत हाल की। आज से कोई तकरीबन 7-8 साल पहले जब पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में मेरा दाखिला जो था वो जायज समझा जाता था, क्योंकि अब तो मैं तकरीबन हर सेकुलर लिबरल यूनिवर्सिटी में बैन हूं, और कोशिश भी करें तो वो कहते हैं कि नहीं, हेट स्पीच है। एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ हेट स्पीच करता है इसलिए क्योंकि गुफ्तगू का जवाब नहीं दिया जा सकता। तो एफसी कॉलेज में मैं तकरीबन शायद मैं ख्याल आखिरी थी, उसके बाद फिर मैं नहीं जा सका। तो एक लड़के ने सवाल किया मुझे खड़े होके, आप बड़ी बातें करते हैं, ये है वो है, दुनिया को आप रिग्रेसिव गियर, ये बड़ा आसान होता है कि आप दुनिया को पहिया वापस उल्टा घुमा रहे हैं, कि भाई इल्जाम लगाना बहुत आसान है। तो उसने कहा जिस मुल्क की टेक्नोलॉजी होती है उस मुल्क का कल्चर भी साथ आएगा, उस मुल्क की आइडियोलॉजी भी साथ आएगी, उस मुल्क की सारी चीजें साथ आएंगी। तो मैंने उसे कहा कि पाकिस्तान के हवाले से जापान का एक दावा है कि पाकिस्तान का कोई एक घर बेशक हो या खैमा क्यों ना हो, उसके अंदर हमारी एक प्रोडक्ट जरूर मौजूद होगी, खा वो ऑडियो कैसेट क्यों ना हो। क्योंकि उस जमाने में ऑडियो कैसेट आपको पता बहुत जापान, ये सोनी और ये वो ऑडियो मैक्सवेल वगैरह क्या आया करते। मैंने कहा मुझे बताइए पाकिस्तान में कितने जापानीज रेस्टोरेंट खुल गए हैं, पाकिस्तान में कितने लोगों ने अत्तायात की तरह बैठ के जापानियों की तरह चाय पीना शुरू कर दिए। जापानी बेड पे नहीं सोते, जापानी जमीन पे सोते हैं। वहां होटल अगर टोक्यो जाए तो आपको बेड वाला होटल ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। कितने लोगों ने जमीन पे सोना शुरू कर दिया, कितने लोग झुककर उसका सलाम करते हैं, कितने लोगों ने जापानीज एथिक्स के मुताबिक हाराकारी शुरू कर दी। शायद ही कुछ शख्स में दुनिया में कल्चर दो रास्ते से आता है, एक निजाम तालीम और दूसरा जो है आपका मीडिया। मीडिया तो आज की सूरत हाल बन गई है, मीडिया पीछे से भी आप ले जाएं तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि जिस वक्त किताब लिखी जाती थी, जिस वक्त अखबार छपता था, उससे आप शुरू कर लें। और अब तो मीडिया जो है इस तरह का है, ये 4 दिन पहले के इंतखाबात से पता चलता है कि लौंडे लपाड़े जो हैं वो कितने ताकतवर हो चुके हैं। तो बहरहाल दो चीजें, दुनिया में अब तक 21 निजाम तालीम हैं जो दुनिया में इंसान ने इस पूरी की पूरी तारीख में पेश किए हैं। बुद्धों का निजाम तालीम था, बड़ा शानदार निजाम तालीम था, उनका अपना एक सिस्टम है, हर चीज है, जिसके बारे में जो बुद्ध और ज़रतुश्त जो हैं ये दोनों एक तसव्वुर में बहुत अहम है कि इस दुनिया के अंदर ही आपको सब कुछ मिल जाता है, ये सर्कल है। बुद्ध ने कहा था फ्रॉम इविल मस्ट कम इविल, फ्रॉम गुड मस्ट कम गुड। इस तरह ज़रतुश्त ने भी कहा था कि मकाफात अमल की ये दुनिया, मकाफात अमल हम भी बोलते हैं, बड़े आराम से बोलते हैं, फलां को मकाफात अमल, अल्लाह कहता है मकाफात अमल मैंने आखिरत में रखा है, तुम मकाफात अमल यहां लेके आते हो। तो ज़रतुश्त के बारे में उसने शेर लिखा था फिरदौसी ने, अज मकाफात अमल गाफिल मशो गंदम अज गंदम बिरो जो, ये उसका शेर है। और उसने कहा कि ज़रतुश्त कह रहा है लोगों से कि मफाक जो तुम अगर अच्छाई करोगे तो अच्छाई मिलेगी, बुराई करो तो बुराई मिलेगी। ऐसा होता नहीं है, बेशुमार बुरे जो हैं वो इस कायनात के अंदर से चले जाएंगे और आखिरत के दिन पकड़े जाएंगे, और बेशुमार अच्छे हैं जिनको कोई घास भी नहीं डालेगा और अल्लाह ताला उनको नवाज देगा। तो ये इस बुद्धों का निजाम था। रोमन्स, उनका अपना एक सिस्टम था। बगदाद का मुसलमानों का, तितिलिया का जिसे टलेडो कहते हैं, उनका निजाम था। लेकिन बदतरीन निजाम तालीम वो है जिसमें मैं और आप तालीम हासिल कर रहे हैं, बदतरीन। उसकी 3 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1, दुनिया में इससे पहले कोई एक निजाम तालीम भी ऐसा नहीं था कि जिसके अंदर उस इल्म की इज्जत की जाती हो जो मार्केट में जिसको पैसे मिलते। द बेस्ट पॉसिबल डिग्री वो है कि जिसकी मार्केट के अंदर वैल्यू ज्यादा है। लम्स की डिग्री अगर 2 लाख में बिकती है तो पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री 1 लाख में बिकती है, और अगर कहीं आपसे वैसे हार्वर्ड से कैम्ब्रिज से डिग्री लेके आ जाए तो उसकी डिग्री 3 लाख मिल जाए। आपकी अगर डिग्री की हैसियत मार्केट में नहीं है तो उसकी कोई औकात नहीं। तसव्वुर ही नहीं हो सकता कि आप जाके ओरिएंटल कॉलेजेस ऑफ लंदन के अंदर जाके
آپ داخلہ لیں اور اس کے اندر سے شاندار قسم کی آپ ہسٹوریکل انالیسس کے اوپر ڈگری لے کے آئے تو آپ کر کیا رہے ہو تم؟ یو اسٹینڈ نو ویئر. نمبر 2، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان وہ رشتہ توڑ دیا گیا جسے ایویلویشن کا رشتہ کہا جاتا ہے. استاد کہا کرتا تھا میں نے اپنے بچے کو پاس کر دیا ہے، پڑھا دیا ہے، اب یہ جہاں جائے گا یہ مار نہیں کھائے گا. ایبسینٹی ایویلویشن سسٹم، یہ بندہ ہے، یہ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن. اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ کہ آپ نے اس استاد کی جو افیکٹونیس بھی ایک ختم کی، اور جو استاد جانتا تھا کہ میرا شاگرد. یہی وجہ ہے کہ آپ کو فرسٹ ڈویژن لیے ہوئے جاہل ترین لوگ ملیں گے اور تھرڈ ڈویژن لیے ہوئے انتہائی شاندار لوگ ملیں گے، کیونکہ آپ نے ایک ویلیویشن کے لیے ایک چیز کو یہی سے وہ ڈگری اور ڈگری پتہ نہیں کیا کچھ نہیں. اور تیسرا، کبھی بھی یہ کتوں والی ریس کا تصور نہیں تھا جو کارپوریٹ کلچر نے پیدا کیا. یہ فرسٹ آیا، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے، یہ فورتھ. میں نہیں چاہتا ہوں یہ جو سیریمنیز ہوتی ہیں نا، یہ جو بچوں کو اس کے لیے اپنا آخری پاسنگ آؤٹ جب وہ ڈگری تقسیم کرتے ہیں. میں لاسٹ ایک بہت بڑے اسکول میں گیا، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس میں نے بات کرتے میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے، آپ نے 12 لوگوں کو یہاں پہ کھڑے کر کے مجھ سے سرٹیفکیٹ دلوائے، گولڈ میڈل دلوائے، اور 450 بچوں کو پوری زندگی کے لیے احساس کمتری کا شکار کر. آپ کو کس نے بتایا تھا یہ کام کرو؟ اور ان کے والدین کے سامنے، ان کے بہن بھائیوں کے سامنے. دنیا میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ کہتا تھا استاد کہ میرے سارے کے سارے بچے جو ہیں، اب ان کو میں نے انجینئرنگ سکھا دیا. یہ جو تاج محل بنا ہے، اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلز بتانا شروع کروں، میں گھنٹے لگا دوں. اس کا جو پلر ہے یہ والا، اس کا جو ہے یہ چاروں، وہ آدھا انچ باہر کی طرف ٹلٹڈ ہیں. دنیا میں ٹریگنومیٹری اور جیومیٹری کا کوئی پی ایچ ڈی ہوگا تب جا کے وہ اس طرح ڈیزائن کرے گا. اس کی جو بنیاد ہے وہ 90 فٹ نیچے ہے، اس کے نیچے 35 فٹ ریت ہے. پورے کا پورا سٹرکچر جو ہے وہ زلزلے کی صورت میں یوں گھوم جاتا ہے. یہ کہاں سے آئے تھے؟ آکسفورڈ سے، کیمبرج سے، MIT سے. اس جگہ سے آئے تھے جس نے اس کو پڑھا کے کہا تھا کہ جاؤ میں نے اس بچے کو طاق کر دیا، یہ سول سروس میں جائے تو ٹھیک ہے. یہ اس کے اندر یہ وہ ایٹماسفیئر ہے جس میں میں نے اور آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے، اور ہم اس میں پھنسے ہوئے. اس ایٹماسفیئر نے میرے لیے ایک کریکولا ڈیزائن کیا ہے، اور وہ کریکولا یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کے اندر ہم ایک ریسرچر ہیں، اور ہم نے تلاش کرنا ہے کہ اس کائنات کو بنایا کس نے تھا، بنی کیسے، آئی کیسے، ہوئی کیسے. یہ بیسک ہائپوتھیسس ہے آپ کا، اور یہ بیسک ہائپوتھیسس ہے جس کے اندر آپ اور میں جو ہیں وہ سٹرگل کرتے ہیں، اور ہم جو ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم اس کائنات کو ڈھونڈنے والے بہت بڑے شناور ہیں، انسان. اور حالت ہماری یہ ہے کہ گدھ جتنی دور سے دیکھ لیتی ہے اتنا ہم نہیں دیکھ سکتے، عقاب جتنا دیکھ سکتا ہے اتنا ہم نہیں دیکھ سکتے، مکھی جس طرح کی صورتحال میں ہوتی ہے اتنا ہم نہیں سوچ سکتے. ہماری پوری آبزرویشن ان 5 حسیات کے اوپر ہے، جس کو ہم جتنا زیادہ ایکسپینڈ کر سکیں کر سکتے ہیں. جو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کو پڑھی آپ کے سامنے، یہ بیسک پریمائز ہے آپ کے علم کا. جب تک اس کی بنیاد کے اوپر ایجوکیشن سسٹم بلٹ نہیں ہوتا، آپ لاکھ کچھ کرتے رہے، کچھ نہیں کر سکتے. پھر ایک شخص آ کے بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ اس کائنات کے اندر یہ چیز دیکھی، اور یہ کائنات جو ہے ایسی ہے، اس کے اصول فزیکل لاز ایسے ہیں، اور ہم نے اس کے اوپر ٹیگ لگا دیا سائنٹیفک ٹروتھ. 200 سال تک سائنس پڑھاتی رہی کہ اس زمین اور آسمان کے درمیان ایتھر ایک سبسٹینس ہے. ہم نے لائٹ کی سپیڈ ثابت کی، ہم نے ہیٹ کی انٹینسٹی ثابت کی. اچانک 200 سال کے بعد ایک شخص آئنسٹائن آتا ہے، اسے کہا ایتھر ڈزنٹ ایگزسٹ. جھوٹ بولتے رہے ہو. یہ کوئی پادری کہتا تھا ایتھر آیا ہے؟ یہ کوئی مولوی قرآن سے نکال کے کہتا تھا کہ ایتھر آتا ہے؟ اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں ساری کی ساری چیزیں بدل. یہی وجہ ہے کہ جس سائنٹیفک ایجوکیشن سے سر سید پیدا ہوتا ہے تو وہ پوری کی پوری قرآن کی تعلیمات کو سائنس کی کسوٹی کے اوپر لا کے پرکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر نہیں پرکھ سکتا تو اس کو کہتا ہے کہ انٹرپریٹیشن کرنے لگتا ہے.
معراج کا انکار کرتا ہے. آج سر سید ہوتا تو جب وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی E=mc² پڑھتا, جب وہ کوانٹم فزکس کو پڑھتا تو کہتا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ اگر لائٹ کی سپیڈ کے ساتھ ایک باڈی کو گھمایا جائے پوری دنیا کا 1,24,000 میل پر سیکنڈ گھمایا جائے تو اس کے اوپر ٹائم اینڈ اسپیس سے وہ باہر نکل جاتی ہے, اس کو اثر 1 منٹ میں ثابت ہو جاتی ہے. بیانیہ الٹ کر دیا پوری کی پوری سائنس کا. سائنس پڑھنے سے کوئی حرج نہیں, سائنس کی بیسس پڑھنے سے حرج ہے. آپ ریسرچ جو ہے, جو لوگ ریسرچ کے ماہر ہیں, ریسرچ ڈیزائن اینڈ میتھڈالوجی, اس کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں. قرآن کی اس آیت کے اندر تینوں سٹیجز بتائے گئے ہیں. پہلا سٹیج ہوتی ہے ہائپوتھیسس. ہائپوتھیسس کہتے ہیں an assumption based on reasoning, ایک ایسا مفروضہ جس کے پیچھے دلیل موجود ہو. یعنی میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ باہر بادل آئے ہوئے ہیں, بس تھوڑی دیر میں بارش ہونے والی, آپ کہیں دھوپ نکلی ہو یار, اندھے ہو, ایسا مفروضہ تو نہیں بول سکتے. ریزننگ کی بنیاد پہ ایک مفروضہ بناتے ہیں کہ اتنے لوگ جہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں اتنی ہیٹ پیدا ہوتی ہے, وہاں اتنا ٹیمپریچر ریز, تو اس کے اوپر آپ ایک ہائپوتھیسس بناتے ہیں, اب مفروضہ بناتے ہیں. دوسری سٹیج ہوتی ہے ڈیٹا کلیکشن. آپ پھر جا کے چیزیں اس کے حساب سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, معلومات حاصل کرتے ہیں. اور تیسری آخری چیز ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کنکلوژنس. قرآن کی آیت کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, میرے بندے کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے میرا ذکر کرتے ہیں. اور ذکر کی ڈیفینیشن اللہ کیا کہتا ہے, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہائپوتھیسس سیدھا کرو تم کہ اس کائنات کو اللہ نے تخلیق کیا ہے, اور پھر ہم نے دیکھنے ہیں کہ اس کے ایٹریبیوٹس کیا. قرآن میں اس کا راستہ اللہ نے خود بتا دیا. سیدنا موسیٰ نے کہا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, کہا مجھے نہیں دیکھ سکتے, اس پہاڑی کی طرف دیکھو. ایٹریبیوٹ سے تم پہچانو, چیزوں کی حیت سے تم پہچانو. یہ جو میز ہے نا میرے سامنے, اس میز نے ایک حقیقت بیان کی ہے. جو لوگ فزکس کے لوگ ہیں, کوانٹم فزکس آپ نے پڑھی ہوگی. کوانٹم فزکس ایک بہت بڑا اصول ڈٹرمن کرتی ہے جو قرآن کی بنیادی پہلی آیت سے. قرآن کی پہلی آیت ہے یؤمنون بالغیب, پہلی آیت, 2-3 آیت, دوسری یا تیسری, ایمان کے درجات. تم غیب پہ ایمان لاؤ. اللہ نے غیب کی ڈیفینیشن نہیں کی, یہ نہیں کہا اللہ غائب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی اترتی ہے وہ جبریل غیب ہے, کوئی فرشتے غیب میں, آسمان کا نا. اللہ نے غیب کی ڈیفینیشن کی. کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ ایٹم سے بنی ہے, اور ایٹم جو ہے وہ اس کو جب توڑتے ہیں تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے, لیکن اس کے اندر 2 الیکٹران اور پروٹون ہیں. یہ 2 ہی ہے نا جی. سائنس اپنی تمام تر کوشش کے باوجود ان کو دیکھ نہیں پائی. ان کی موومنٹ سے اور ہیٹ سے سمجھ آتی ہے کہ کوئی چیز ہے. اس کا مطلب یہ پوری کی پوری میز غیب ہے. یہ جو کیمرہ ہے یہ غیب ہے, سب کچھ غیب ہے, کیونکہ آپ اس کی بنیادی حیت ترکیبی اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ کہتا ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض, جاؤ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہم نے تخلیق کیا ہے اس کے تم اس میں غور و غوص کرو. ہم لوگ ذکر سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کیا کرو, وہ اچھی بات ہے کہ آپ کلمہ کا ذکر کرتے ہیں, افضل الذکر کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سب کچھ کہتے ہیں. لیکن اللہ ذکر کی ڈیفینیشن کہتا ہے کہ جو میری کائنات میں تخلیق, اللہ کہتا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر قرتين جنقلب عليك البصر خاسئا وبصير. جاؤ اس کائنات کے اندر گھومو اور دیکھو اس کائنات کے اندر تخلیق میں تمہیں کوئی جھول نظر آتا ہے, یقیناً تمہاری نگاہ دوبارہ جاؤ, تمہاری نگاہ جو ہے ناکام و نامراد لوٹے گی. کائنات کی گزشتہ 5000 سال کی سائنٹیفک انکوائری یہ کہتی ہے کہ اس کائنات کی تخلیق میں 1 مائکرو سیکنڈ کا بھی جھول نہیں, ورنہ یہ کائنات یوں ٹکرا جائے آپس میں ان کے پاس. تو اللہ کہتا ہے ان کو, اور جب تم ڈیٹا کلیکشن سے واپس آؤ تو پھر تم کنکلوژن ڈرا کرو. اور کنکلوژن کیا ہے, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اللہ تو نے کوئی چیز باطل تو پیدا نہیں کی. تو یہ پورے کا پورا ہمارا سائنٹیفک گراؤنڈ جو ہے وہ اس قسم کا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک اسلامک اسکول جہاں اسکول کھولتا ہے
اور स्कूल के साथ कुरान पाक पे हिफाज पैदा करता है, कुरान पाक की तालीमात भी देता है, लेकिन साथ वो क्रिसमस कैरल भी पढ़ा रहा होता है, साथ वो सिंड्रेला पढ़ाता है कि जो मां से झूठ बोल के घर से निकलती है। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं पढ़ाता जिसकी जेब में 30 दिनार होते हैं और वो शख्स को डाकू उससे पूछते हैं किसी के पास है, तो कहते हैं हाँ मेरे पास है। हैरान और शशदर डाकू कहता है कि बताओ तुमने छुपाया क्यों नहीं? तो मेरी मां ने कहा था कि अगर जान भी चली जाए तो झूठ मत बोलना। ये अखलाकियात 12 साल की एज तक क्यों इस 1920 में ये जो रॉकफेलर और ये लोग लेके आए थे निजाम तालीम 55 का, क्योंकि 12 साल की एज तक ये जो दिमाग है, इस दिमाग की वॉल के ऊपर आदमी अपनी पेंटिंग्स बनाता है, माहौल बनाता है, और वो माहौल उसका पूरी जिंदगी का माहौल रहता है। वो उस माहौल से निकल नहीं सकता। उस माहौल में क्या क्या पढ़ाया जाता है? वो चर्च बेल टॉल्फ पढ़ाता है। वो मेरी जगह एक अजीब गरीब किस्म की टाई पहने हुए और स्कर्ट पहने हुए दो लड़के उस्ताद और शागिर्द की तस्वीरें हो, पूरी की पूरी पिक्टोरियल से लेके उसकी सारी की सारी कहानियों से लेके वो स्ट्रॉबेरीज, चेरीज एंड एंजल किसिंग ट्रीज एंड समर वाइन इज ऑल दीस थिंग्स, ये पढ़ता है। उसके साथ आप उसको सूरह फातिहा पढ़ाए, कोई असर नहीं पड़ेगी। उसके साथ अल्लाह आयतुल कुर्सी पढ़ाए, उसके ज़हन पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। वो इसको एक एडिशनल सूरत हाल लेता है। मैं अभी दुबई में था, दुबई में बच्चों के स्कूल, क्योंकि वहां बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनसे पूरी की पूरी उनको बच्चों को कम से कम 12-13 सूरतें याद थी और इंतहाई लहन के साथ शानदार किस्म की तिलावत अरब है पढ़ा, लेकिन उनकी जो साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड लाइफ थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ। अब इस बुनियाद पर उस्तवार किए हुए जहन को जब वहां लेके आते हैं तो कहते हैं अच्छा तुम कुरान की आयत सुनाते हो, ये मुझे बताओ कि इस कुरान की आयत के मुताबिक वो कौन सी साइंटिफिक थ्योरी के ऊपर खड़ी हुई। हालांकि साइंटिफिक थ्योरी को आप कुरान के अंदर टेस्ट करेंगे, क्योंकि आपका तो इतना इल्म महदूद है कि मैं यहां से सारे लोगों को एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाऊं और ठुड्डे मारता हुआ मैं चेयरिंग क्रॉस लेके जाऊं, वाकया हो चुका है, मैं लोगों को कहूं इसके पर गवाही न दो, आप होश है, आप बयान नहीं कर सकते कि आपसे हुआ क्या। इतनी लिमिटेड, मैं बताया गिद्ध जितनी भी हमें हैसियत है, हमें उन जानवरों जितना भी नहीं पता जिन्होंने जल्जले आने से पहले खबर दे देता है अल्लाह तबारक व तआला, और फड़फड़ाने लगते हैं। इस तरह की सूरत हाल में दावे की सूरत हाल ये, तो असल मसला ये है कि हमारा पूरा यूनिवर्सिटियों को तो बात की बात है, जब तक आप अपने प्रेमाइज, अब दो चीजें ऐसी हैं कि जिसके बगैर आपका अपना ना एजुकेशन सिस्टम ठीक हो सकता है और ना आप किसी तौर पर इल्हाद से बाहर निकल सकते हो और ना किसी किस्म के खतरे से। आपकी लड़ाई बहुत मुश्किल है। मैं आप नौजवानों को देखता हूं, मेरे जमाने में ये लड़ाई इतनी मुश्किल नहीं थी, अगरचे कि मेरे जमाने में ये चीजें शुरू हो गई थी। मैंने सर सैयद का नाम इसलिए लिया कि मुझे अलीगढ़ से आज तक कोई बड़ा आलिम दीन पैदा हुआ नजर नहीं आया। मुझे अलीगढ़ से कोई वकील, मुझे अलीगढ़ से कौन लोग पैदा हुए? सिविल सर्वेंट, ये आईसीएस, ये फलां, बड़ा आदमी को पैदा नहीं हुआ। उससे इकबाल ने कहा था गला तो खोंट दिया अहले मदरसा ने था, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। अलीगढ़ जो है वो रेप्लिका है उस सारे सिस्टम का, उसका रेप्लिका है आज का सिस्टम जो हम यहां पर एक अंग्रेज ने खोला। और एक आपको पता है कि बड़े सगीर पाको हिंदी इस्लामी तारीख के अंदर पहला दीनी मदरसा किसने बनाया था? 1781 में खोला गया था। विलियम बेंटिंग था जो उससे पहले कोई एक था। कलकत्ता मदरसा, टाइप कीजिएगा, खोलिएगा। पहली दफा उसने कहा दीन की तालीम अदा कर दो, दुनिया की तालीम अदा कर दो, वरना कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मुसलमानों के यहां दीन का मदरसा और दुनिया की तालीम अलग हो। ये मदरसा रहीमिया सब कुछ इस तरह चलते थे। तो एक उसमें मदरसा रहीमिया और फनगी महल में था, कुछ तफसीर बैदावी के टुकड़े होते थे और दो एक और उसके टुकड़े होते थे और अहादीस होती, बाकी सब दुनियावी तालीम हासिल करते थे। ये अबू अली सीना कहां से पैदा हुआ? जाबिर बिन हय्यान कहां से पैदा हुआ? जर्जी कहां से पैदा हुआ? ये किसी स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी में से मास्टर्स इन फिजिक्स और पीएचडी इन इकोनॉमिक्स और ये पीएचडी इन मैथमेटिक्स से पैदा हुए थे, यहीं से पैदा हुए थे। ताबे एक चीज ये कि आपको जब तक इस निसाब तालीम को उस हिसाब से बदलना आपको शुरू दिन से आपको अपना एजुकेशन सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा, तब आप ऊपर आएंगे। दूसरी चीज, दुनिया की तमाम अक़वाम के अंदर एक बुनियादी चीज
जिसकी वजह से हमारी लड़ाई मुश्किल हो गई है कि कोई 5000 साल की तारीख में कोई एक कौम ऐसी नहीं है जिसने किसी दूसरे की जुबान में इल्म हासिल किया और तरक्की की। एक कौम, हमसे कहा जाता है अंग्रेजी तुम्हारा मसला है, कोई नॉर्वे से नहीं कहता, कोई स्वीडन से नहीं कहता, कोई डेनमार्क से नहीं कहता, कोई फिनलैंड से नहीं कहता, कोई आइसलैंड से नहीं कहता। 25-25 लाख के मुल्क हैं पीएचडी तक अपनी जुबान में करवाते हैं। इसलिए कि आप जब अपनी जुबान के अंदर इल्म हासिल करते हैं तो आपकी लैंग्वेज का तनाजर बिल्कुल और होता है, आपके हीरोज और होते हैं, आपकी तारीख और होती है, आपकी शायरी और होती है, आपकी जिंदगी और होती है। मैं बारहा हर जगह मिसाल दी है। आप बड़ी आसानी से एक आदमी को कह देते हैं कि आई लव यू, लेकिन एक लड़की को अगर कहना पड़े लड़के को आई लव यू की जगह कि मैं तुमसे इश्क करती हूँ, या लड़के को कहना पड़े मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, उसके माथे पर पसीना आ जाएगा। तो उसको पता है कि इसकी ट्रेडिशन के अंदर ये कितना घटिया और आमियाना किस्म का लफ्ज। हमारे यहां पूरे का पूरा सिस्टम, दुनिया में हर बच्चा यूरोप में 4 जुबानें पढ़ता है। इंग्लिश पढ़ता है, लैटिन पढ़ता है, फ्रेंच पढ़ता है, और एक उसको ऑप्शन दी जाती है फ्रेंच बच्चा फ्रेंच पढ़ता है, डच पढ़ता है, जर्मन पढ़ता है, एक जुबान उसको। फ्रांस, इवन फिनलैंड, आइसलैंड जैसे बच्चे 4-4 जुबानें पढ़ते हैं। जब तक हम अपने बच्चों को लैंग्वेज उर्दू के साथ 2 जुबानें लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन फारसी और अरबी नहीं पढ़ाएंगे और उसके साथ अंग्रेजी, मैं एक साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से एक अथॉरिटी कहता हूं, अ चाइल्ड कैन लर्न 7 लैंग्वेजेस साइमल्टेनियस। जो लोग कोयटा के लोग हैं, कोयटा के लोग जो हैं वो जानते हैं कि हर कोयटे में रहने वाला बच्चा 4 जुबानें जरूर सीखता है और 4 जुबानें फ्लुएंटली बोलता है। तो ये चीजें जब तक आप नहीं करते, आप यूनिवर्सिटी की एजुकेशन बिल्कुल करते रहे, ऐसे ही है। आपको हमारे सर्विस के अंदर बेशुमार हुफाज कुरान आए थे, बेशुमार वहां से आते हैं, जामिया अशरफिया से पढ़ के भी, और वो क्या नाम है उसके जो बनौरी टाउन से सब जगह से पढ़ के आते हैं, जामिया नईमिया से पढ़ के आते हैं, कोई असर नहीं। मर्द नाजा पर कलाम नरमंदाज, आप उस छोटे से कुएं के अंदर हो जिसके अंदर से आपको बताया गया है कि यही तुम्हारी जिंदगी है, यही तुम्हारी एजुकेशन है, और यही हमको नहीं पूरी दुनिया को बताया गया है। हमसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी जो है इसका इफेक्ट किया। पूरी की पूरी क्रिश्चियन दुनिया जो है अब ये सोचती है कि नहीं, जीसस तो कोई जवाब नहीं दे सका था, बाइबल तो कोई जवाब नहीं देती, अल्लाह तबारक व तआला को हमने ढूंढना है, तू मेरे जहन में आया तो खुदा कहलाया। ये तसव्वुर जो है, जब तक आप अपना हाइपोथेसिस आपकी पूरी ठीक नहीं करते, आपकी पूरी इमारत। और आखिरी एक और चीज जिसके बारे में सिर्फ 2 मिनट में आपको बात करके इजाजत चाहूंगा, जब तक आप मुसलमानों के अंदर इस्लाम के असूलों के मुताबिक खवातीन की और मर्दों की एजुकेशन सिस्टम अलग नहीं करते, आप कभी भी इस्लाम नाफिज नहीं कर सकते, कभी भी लोगों को आगे लेके जाए, कभी भी। एक बुनियादी चीज, मर्द इस्लाम के यहां सबसे इंपॉर्टेंट, नॉट इस्लाम, सोशियोलॉजी में जो लोग हैं, दुनिया में इंसान ने एक ही इंस्टीट्यूशन ऐसा बनाया है कि जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली, खानदान का अदारा। इससे बड़ा अदारा कोई नहीं है, सारे अदारे इसकी मोहताज हैं। अनएम्प्लॉयड हो, फैमिली मदद करती है, आप बीमार हो, खानदान जाके आपका इलाज कराता है, आप किसी के साथ कत्ल गारत की सूरत में हो, 4 भाई हैं तो जाके बदला लेते हैं। स्टेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 इदारा इस्लाम इस इदारे को यूं तकसीम करता है। रसूलुल्लाह की हदीस जो है, कुल्लुकुम रायुन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, तुम्हें सर को एक गला बांध है और उससे उसके गले के बारे में रोज़े हशर पूछा जाएगा। और वहां अल्लाह के रसूल ने अलहदा किया, मर्द का गला घर है और औलाद औरत का गला है, बकायदा मेरा कला औरत। तो इस्लाम के यहां मर्द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द फैमिली है और औरत चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द फैमिली। आपकी जुबान में समझाता हूं, चीफ एग्जीक्यूटिव का काम सिर्फ 2 है, गधों वाला काम, कमा के लाओ और बाहर खड़े होकर खानदान की इज्जत की और हुर्मत की हिफाजत करो, कोई और काम नहीं है। जिस औरत को एक घर मिलता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मैं सिर्फ आपकी जुबान में समझाना चाहता हूं उसको किस किस्म की तालीम देनी चाहिए। नंबर 1, उसको मैरिज स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स का पता होना चाहिए। खानदान, आज इसमें पीएचडी होती है, आज इसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सर्विसेज होती हैं कि जिस घर में जा रही हो, जिस खानदान में जा रही हो, जिस जिंदगी को इख्तियार कर रही हो, उसके क्या है, पीएचडी होती है। वो घर में चले गई है, उसका बच्चा उससे पैदा करना है, उसको पोस्टनेटल, प्रीनेटल, एंटीनेटल केयर का पता होना चाहिए। आज साइंस इस बात पे इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि बच्चा मदर टंग जो अपने पेट में सीख के आता है मां की, हम सिर्फ दोहराते हैं उसको।
माहौल कैसा होना चाहिए, उसके मिजाज कैसा होना चाहिए, किस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए, लड़ेगी तो कैसा साइकोलॉजिकल मेकअप होगी बच्चे की, नहीं लड़ेगी तो कैसे साइकोलॉजिकल मेकअप होगी, आगे उसका बच्चा दुनिया में आ गया, उसके बच्चे की कॉग्निटिव नीड, इसके अंदर भी पीएचडी होती है, उसको कॉग्निटिव नीड्स का पता होना चाहिए, उसको सोशल नीड का पता होना चाहिए, उसको साइकोलॉजिकल नीड्स का पता होना चाहिए, उसको आईक्यू नीड्स का पता होना चाहिए, उसको लेटेंसी नीड का पता होना चाहिए, उसको एडोलेसेंस नीड का पता होना, राइट फ्रॉम फर्स्ट डे उसको 16-17 साल की एज तक, बुलूगत तक, इतने स्टेजेस से बच्चे को गुजारना पड़ता है कि आप सोच नहीं सकते। आप उसको मेडिकल डॉक्टर बनाते हैं, बच्चा उसका ऑटिज्म का शिकार हो जाता है, उसको सिर्फ टीका लगाने आता है, पीर के पास ढूंढ रही होती है कि तवीज दो, मेरा बच्चा ऑटिस्टिक हो चुका हो। आप उसको इंजीनियर बनाते हैं, उसको कुछ पता नहीं होता कि बच्चा जो है उसकी आईक्यू के लेवल क्या है, उसको आईक्यू टेस्ट खुद घर में करना है, उसके हाथ में 2 बूढ़े आ जाते हैं। एजिंग इज ए साइंस कि मुझे इन 2 बूढ़ों को लेके कैसे चलना है, इनकी एजिंग को इंप्रूव कैसे करना है, पीएचडीज होती हैं उनके अंदर। उसके हाथ में इस घर की न्यूट्रिशन आ जाती है, मास्टर डिग्री न्यूट्रिशन की आ जाती है, उसके हाथ में एक घर आ जाता है, एक इंटीरियर डिजाइनिंग कैसे करनी है, उसके घर के अंदर इकोनॉमिक सूरत हाल होगी आ चुकी है, फैमिली सस्टेनेबिलिटी, इनकम कैसे बिल्ड करनी है, किस तरह उसने छोटे छोटे चीजों से एक खानदान के इनकम घर के अंदर। जापान में चले जाएं, आपको 90% इनकम जो है घरों के अंदर जनरेट हो, कोई टोयोटा कंपनी की बड़े पुर्जे नहीं बनते, एक एक बंदा घरों के अंदर लेके आता है, वही बना के बेच। ये जब तक तालीमी निज़ाम नहीं बनता, ये मास्टर्स इन फैमिली एजुकेशन नहीं होता। आखिरी फिक्रा बोलता हूं, एजुकेशन में लास्ट मेरी अपॉइंटमेंट थी जब मैं डायरेक्टर जनरल NCHD था, तो उस वक्त जब मैंने डाटा में पहुंचा, 87% बच्चियां हमारे मुल्क की वो हैं कि जो इल्म हासिल करती हैं उसके मुताबिक वो नौकरी नहीं कर रही होती। मैंने पूछा क्यों नहीं करती, जब हम डाटा कलेक्ट किया तो इसलिए नहीं करती, MA इसलिए करती हैं कि अच्छा रिश्ता आ जाए। जिस बच्ची ने ये मास्टर्स हासिल किया होगा, लोग ढूंढेंगे उस बच्ची को घर की CEO लगाने के, COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लगाने के लिए। ये है वो सूरत हाल। यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर बेहतरीन इंजीनियर औरत बने उसके लिए तमगा है, शानदार किस्म की पायलट बने तमगा है, बेहतरीन एथलीट बने तमगा है, लेकिन बेहतरीन माँ बनने का कोई तमगा नहीं। इस माँ की कोख से मैडम क्यूरी पैदा हुई थी, इस माँ की कोख से आइंस्टाइन पैदा हुआ था, इस माँ की कोख से डॉक्टर कदीर पैदा हुआ था, और इस माँ की कोख से कोई आलम दीन पैदा हुआ था। जिस दिन आप उसको अलहदा निज़ाम तालीम नहीं देंगे, उसको बताएंगे नहीं कि तुम इस कायनात की वो औरत हो, कि वो शख्सियत हो कि जिसने इस कायनात के अंदर बेहतरीन इंसानों को पैदा करना है। दुनिया में आप शानदार किस्म की मैकेनिक पैदा कर रहे हो, शानदार डॉक्टर पैदा कर रहे हो, वो औरत जो है वो शानदार किस्म की पुलिसमैन, DMG ऑफिसर, हर चीज़ बन रही है, लेकिन वो इंसान पैदा करने, इंसान बनाने और इंसान की तरबियत करने वाली नहीं है। यही वजह है कि आप जितना जोर लगा लें, जिस जगह भी चले, आपकी लड़ाई सख्त ज़रूर होती जा रही है, दिन ब दिन होती जा रही है, लेकिन ये बुनियादी तब्दीली बहुत ज़रूरी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े अच्छे से इस हकीकत को आश्कार किया। अभी हमारे दरमियान हमारे न्यू चीफ गेस्ट मौजूद हैं सेपियंस इंस्टीट्यूट से। सेपियंस इंस्टीट्यूट UK से हमारे पास मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। इरादा भी यकीनी है, अज़्म भी है ये अब अपना, फिक्र की पस्ती से उम्मत को हम निकाल लाएंगे, करेंगे फाश साजिश को हमें लादीन करने की, कि दहरो सुल्ख के हर भाव से उम्मत को बचाएंगे। हमें टकने नवाजा है, कभी ना भूल पाएंगे, दिया है अहद हमने भी, तक का साथ निभाएंगे। शरक हो या गरब हो के कोई भी From Sapiens Institute UK,
फहद तस्लीम हमारे पास इस वक्त हाल में मौजूद हैं. Sir, we welcome you. We are thankful to you. We are highly thankful to Fahad Taslim who came to our show. साथ निभाएंगे अभी हम एक और अपने मेहमान हसूसी का इंतजार कर रहे हैं जो कि जल्द ही हमारे पास हाल में मौजूद होंगे इंशाअल्लाह ताला. वो भी सेपियंस इंस्टीट्यूट यूनाइटेड किंगडम से हमारे पास तशरीफ लाए हैं. कभी ना भूल पाएंगे दिया है अहद हमने भी तक का साथ निभाएंगे. Please welcome Mr. Imran Hussain from Sapiens Institute UK. He is in our hall. Please welcome with round of applause Mr. Imran Hussain. Sir, we are highly thankful to you. फिक्र की बस्ती से उम्मत को हम निकाल लाएंगे करेंगे फाश साजिश को हमें लादीन करने की कि दहरो सुर्ख के हर भाव से उम्मत को बचाएंगे. हमें टकने नवाजा है कभी ना भूल पाएंगे दिया है अहद हमने भी तक का साथ निभाएंगे. We are highly thankful to Mr. Imran Hussain and Mr. Fahad Taslim जो कि हमारे पास यूके से तशरीफ लाए हैं. तो अभी ऑडियंस की फरमाइश पर हमें 5 मिनट एक्स्ट्रा निकालने पड़ेंगे सरोरिया मकबूल जान साहब से. अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, हमारे पास टोटल 5 मिनट है. उस 5 मिनट में कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल अपना शॉर्ट क्वेश्चन रखें ताकि वो आपको एक प्रिसाइज आंसर कर सकें. जस्ट 5 मिनट है आपके लिए. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सर, मेरा नाम हाफिज़ नवीद असगर है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से लिटरेचर डिपार्टमेंट से आया हूँ. सर, आपने लैंग्वेज बैरियर की बात की कि जिसमें सबसे पहले अगर हमारे निज़ाम तालीम को देखा जाए तो उसमें फ़ारसी और अरबी को मलजूम कर देना चाहिए. और अगर हम देखें फ़ारसी और अरबी यूनिवर्सिटीज़ में एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर तमाम सेमेस्टर में नहीं पढ़ाई जाती. और अगर इसी को मदरसे में देखा जाए, जैसे आपने कोयटा की मिसाल दी, जैसे आपने दुबई की मिसाल दी कि वहाँ लैंग्वेज भी सिखलाई जाती है और यानी 4 लैंग्वेज सिखलाई जाती हैं. तो मदारिस में भी मेरे ख्याल से इंग्लिश को भी सिखलाना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी, इट इज़ द नीड ऑफ द आर्ट. तो इस पर आप क्या राय देना चाहेंगे? क्या ये मैं समझ. देखिए, पहली बात जो है कि मैंने ज़ुबान पढ़ाना इसलिए कहा है कि ज़ुबान एक व्हीकल है चीज़ों को पढ़ने के लिए. ये आपको जब पढ़ेंगे ना तो आप उस व्हीकल पे अच्छी तरह आपको रूमी का शेर भी आएगा या इकबाल भी आएगा, आपकी ट्रेडिशन अरबी में भी आप चीज़ें पढ़ लेंगे, हदीस की बाकी चीज़ें. लेकिन मदारस का मामला यह है कि मदारस अंग्रेज़ी तो पढ़ा लेते हैं लेकिन जदीद उलूम साथ नहीं पढ़ाते उसके साथ मैच करके. यहाँ मसला यह है कि यहाँ अंग्रेज़ी पढ़ा लेते हैं, उसके साथ जदीद उलूम पढ़ाते हैं लेकिन बाकी दीन नहीं पढ़ाते. यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इतना एक घटिया तस्वर दिया जाता है कि मदारस को मेन स्ट्रीम में लेके आना है. ओ भाई, इस यूनिवर्सिटी को मेन स्ट्रीम में लेके जाना है. उलट कर रहे हो तुम. मेन स्ट्रीम वो है हमारी. इस तरह असल मसला ये है कि आपको पूरे का पूरा निज़ाम है. मैंने आपको पूरे सामने ये दोनों किताबें आप लोग पढ़ें तो पूरे का पूरा उस वक्त जो डिज़ाइन किया गया था सिस्टम, जो 1920 के अंदर डिज़ाइन किया गया है. आपको पता है एक किताब है बड़ी अहम, उसने ब्यूटीफुल ट्री उसने कंपाइल किया 1920 के अंदर, एक बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर डाटा कलेक्ट किया. राम मतल बहुत हिंदू ने. जिस वक्त अंग्रेज जहां पर आया है तो आपको किसी को अंदाजा है कि पाकिस्तान और बड़े सगीर में लिटरेसी रेट कितना था? 97%.
जब गोरा हमसे कहता है ना तुम्हें एजुकेशन का अंदाजा नहीं, तो हमें हजम नहीं होती। एक तालीक होता था जो कि फारसी पढ़ाता था, कुरान पढ़ाता था और मैथमेटिक्स पढ़ाता था। फंक्शनल इल्म होता है। हिंदू होता था तो वेद पढ़ाता था या गीता पढ़ाता था और बाकी दोनों चीजें पढ़ाता था। मैंने अपनी माँ से फारसी सीखी और जिंदगी में कभी मदरसे नहीं की, और मैं फारसी बोल लेता हूँ, मैं फारसी में शेर लिख लेता हूँ। ये पूरे का पूरा सिस्टम था नॉन फॉर्मल एजुकेशन का। किताब है इसकी लाइटनर की, इंडिजिनस एजुकेशन इन द सब कॉन्टिनेंट। उसने मदरसे बकायदा उनकी तरतीब बताई है कि कौन से थे। 400 कॉलेज थे उस वक्त। वो जो फाहीन लिखता है सिर्फ ठट्ठा के अंदर। असल मसला ये नहीं है ये पढ़ाना, असल मसला ये है कि ओवरऑल जब तक आप बुनियाद से पूरे सिस्टम को ठीक नहीं करते ना, कभी ठीक नहीं हो सकता। बुनियाद आप ठीक करो, 10,000 लैंग्वेजेस पढ़ा दो, कुछ नहीं होगा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं जिसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का स्टूडेंट हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। जुबान के रिलेटेड ही क्वेश्चन था, जैसे कि हमारे कंपैरिजन में चाइना, ठीक है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी की जितनी जुबान है उन्होंने अपनी ओन लैंग्वेज में कर लिया एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज एंड पाकिस्तान। वी आर नॉट फुलफिलिंग टू अडॉप्ट दैट एंड एनीथिंग लाइक दैट। सो आप इस पे कोई कमेंट करना चाहिए कि हमें ये करना चाहिए, क्योंकि जितनी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो अगर हम अपनी जुबान में अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको लगता है कि वो हम बेहतर रिजल्ट्स और सारा कुछ अच्छा डिलीवर कर सकेंगे या नहीं? इस पे आपके कमेंट्स चाहेंगे। देखिए, मैंने तो चाइना की मिसाल दे सकता था, मैंने तो छोटे छोटे मुल्कों की मिसाल दी है, 25-25 लाख के मुल्कों की, छोटे छोटे मुल्कों की। और जहां तक एक बात याद रखें, चाइना इज ए कंप्लीटली एथिस्टिक सोसाइटी। अल्लाह के मुनकर, उनके यहाँ जिंदगी की मेराज टेक्नोलॉजी है, उनके यहाँ जिंदगी की मेराज दुनिया है, उनके यहाँ सब कुछ है। अगर हमने पूरी दुनिया में हमने सारा कुछ हासिल कर लिया और हमारी आखिरत बर्बाद होगी तो हम तो गए। अल्लाह को कुरान फरमाते हैं, ला युगर्रन्नका तक़ल्लुबुल्लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद, तुम्हें काफरों का शहरों में खुशहाली से चलना फिरना धोखे में ना डाल दे। सूरह काफ में उठाएं, हमने इस दुनिया को बेहतरीन बनाया, जाज़िबे नजर बनाया ताकि हम तुम्हारी आजमाइश करें। तो एक बात तय है कि किसी भी सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करना, हमने खुद अपने हिसाब से सिस्टम डिजाइन करना बहुत मुश्किल काम है, नहीं है। मसला समझ है कि हमारे यहाँ 2 लोग पैदा नहीं हो सके। आपको पता है कि ये पाकिस्तान के अंदर ए लेवल एंड ओ लेवल जो था 1979 में आया था। ये गुलबर्ग की सड़क जो है इसके बीकानेर, उनकी एक बहन ने सिटी स्कूल खोला था पूरे पाकिस्तान में। आप सोच सकते हैं क्यों आए थे? क्योंकि कोई गवर्नमेंट नहीं आई। गलत बात है गवर्नमेंट ये करती है। मैंने 5,000 जेब से निकाल के अपने बच्चों को भेजा, उसने 10,000 निकाल के बच्चे को भेजा, इसलिए कि उन्होंने कहा था मार्केटेबल एजुकेशन आपको दे रहे हैं, वो दे रहे हैं कि जिससे तुम्हारा बच्चा जो कल को उसका मुस्तकबिल बनेगा। जब तक ये तसव्वुर खत्म नहीं होता हसूल इल्म के अंदर कि वो इल्म काबिल इज्जत है जिसकी मार्केट के अंदर वैल्यू है, उस वक्त तक, और जब तक हम उन बुनियादी उलूम की मार्केट में इज्जत नहीं देंगे, जब तक हम उस उलूम की, जब तक हम दीन पढ़ने वाले को एक पीएचडी स्कॉलर जितनी तनख्वाह नहीं देंगे, उतनी मुराद नहीं देंगे, एक फलसफा पढ़ने वाले को नहीं देंगे, हम कभी भी अपना आगे नहीं बढ़ सकते। जी ठीक, थैंक यू जी। सर बहुत शुक्रिया आपका। हम तो चाहते थे कि आप हमारे दरमियान मौजूद रहते, लेकिन आपको जल्दी है तो हम चाहते हैं कि आपको हम चीफ गेस्ट की शील्ड पेश कर दें। तो मैं मुल्तमिस हूँ प्रेसिडेंट मिस्टर आमिर शबीर और वाइस प्रेसिडेंट जाहिद इनायत से कि वो सरोरिया को शील्ड पेश करें। शहर का नूर बन जाओ, उजाले की तरफ आओ। शहर का नूर बन जाओ, उजाले की तरफ आओ। अंधेरों से निकल जाओ, उजाले की तरफ आओ। अंधेरों से निकल जाओ, उजाले